الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اچھا ہم یعقوب علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے نا. حدیث کے اندر ہے لیکن نبی نے بولا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, 4 مرتبہ ذکر کر رہا ہے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اور وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی, ان کے والد صاحب تھے اسحاق, اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام. طبعا یعقوب علیہ السلام پلے بڑے نبوت کے گھر کے اندر, حکمتوں لی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ساری, اور نیک بہت تھے عموماً. اور یہ جو ہے ان کا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ دونوں سمجھتے کہ جو وہ کے تھے, لیکن عیسیٰ جو تھے, عیسو جو ہے اس کو بولتے ہیں, عیسو اس کے بڑا نام, وہ پہلے پیدا ہوئے تھے, یہ ان کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. تو یا اسحاق جو تھے نا, اسحاق علیہ السلام, وہ اپنے آخری عمر میں تھوڑے نابینا ہو گئے تھے, ان کو نظر نہیں آتا, لیکن ان کی محبت جو زیادہ جو نا بڑے بیٹے سے تھی, عیسو سے. اور یعقوب سے جو ہے نا زیادہ محبت کون کرتی تھی؟ ان کی بیوی جو کہ لاڈلے وہ تھے یعقوب, اور شوہر بڑے کے یعقوب تھے, لاڈلے تھے عیسو. تو یہ ہو کہ ایک مرتبہ انہوں نے ان کو ایسا ہو کہ ان کو ایک بھوک یعنی بھوک لگی, انہوں نے بولا کہ یار یعقوب جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے, ان کے کام تھا گھر کے کام کرنا, بکریاں چرانا, اور یہ. اور جو عیسو جو تھا وہ تھا نا شکار کرتا تھا, اور اس کے جو نا مردانیاں زیادہ تھی, لمبا چوڑا, اور یعقوب علیہ السلام ویسے نہیں تھے. اور ان کی جو کھال بھی بالکل نرم سی تھی یعقوب علیہ السلام کی, اور ان کے اندر ہلکا پن اور دھیمی دھیمی باتیں نہیں کہ. اور ان کا جو بڑا بھائی تھا اس کے اندر مردانیت کی ساری چیزیں تھیں, حد تک کہ جسم کے اندر بال بھی بہت گھنے تھے اس کے. اور وہ تو شکار کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ جو کام ہوتا ہے آسان ہوتا ہے. عموماً انہیں کیا بولا, اپنے بیٹوں سے بولا کہ یار مجھے بھوک لگی ہے. تو بڑے بیٹے کو بولا اس ادھر آؤ, اور اس سے بولا کہ تم جاؤ مجھ کو شکار کر کے لاؤ, مجھے دل چاہ رہا گوشت کھانے کا, اور میں تم کو ایسی دعوت دوں تم مزہ آ جائے گا. اب آپ کو پتا ہے ماں جو تھی وہ انہوں نے سن لیا, اور لاڈلا ان کا کون تھا؟ یعقوب. بیٹے یعقوب جلدی سے بکریاں میں سے 2 اچھی بکریاں پکڑو اور اس کو بنا لو, اور یہ سب کچھ کرو, اپنے باپ کو دے دو, بہت زبردست دعوت ملنے والی ہے, تم کو ایک دعا ملنے والی ہے. وہ گئے اور جلدی سے کاٹا, اور جو نا کیا کرا, اب ان کے تو بیچارے ہاتھ جو ہیں نرم تھے, تو انہیں کیا کرا, جو بکری میں جو کھال ہوتی ہے نا وہ اپنے جو نا ہاتھوں میں لگا لی. اب جب آئے انہوں نے کھانا پیش کرا, جو کھانا تیار ہے, تو انہیں ہاتھ لگایا اس کو, تو کہنے کہ لمس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ عیسو ہے, آواز سے یعقوب لگ رہا ہے. لیکن انہوں نے ذہن میں, اب شاید نابینا تھے نا, انہوں نے ذہن میں سوچا کہ یار ایسا ہو, لیکن جب میں نے جو حکم دیا تو عیسو کو دیا تھا, یعقوب کو کیا پتا, نہیں یہ ہے, مجھ کو ایسا بہت گمان ہو رہا ہے یہ عیسو ہی ہے. تو انہوں نے پھر ان کو دعا دی کہ تمہاری جو نا اللہ تمہارا تم کو علم سے نوازے, اور تمہارے اندر جو نبوت بھی ہو تمہاری نسل کے اندر. تو یہ بڑی زبردست دعا دی. تو یہ دعا لکی نکل گئے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد عیسو آیا, شکار کر کے اس نے جا کے اور کھانا نہ اٹھا لیا, انہوں نے سب کچھ فارغ ہو گئے تھے وہ. تو کھانا جو دوبارہ رکھا تو کہنے کہ ابھی تو تم کھانا لے کر آئے, تو دوبارہ کیوں لے کر آ گئے؟ تو اس کو پتہ چل کہ اچھا یہ کوئی ماجرا ہوا ہے. لیکن کہنے لگے ٹھیک ہے, لیکن ان کو بولا اچھا. تو انہوں نے ان کے لیے بھی دعا کری کہ تمہارے اندر جو ہے نا تمہارے جو ہے نا تمہاری اللہ نسل میں برکت دے, اور تمہارے کچھ نا ملک دے, تمہاری نسل میں ملک رکھے. تو اس کا الگ وہ ہو گیا. اب یہ جو تھے, اب سمجھ لیں کہ جو نسل جو چل رہی ہے نا, جو گوروں کی چٹوں کی جو نسل چل رہی ہے وہ سارے عیسو سے ہے, اور ان کے اندر میں حکمرانیت مسلسل ہے, حکومت کرتے ہیں, ملک ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. اور ان کی جو نسیم آئی نبوت آئی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے پھر کیا ہوا کہ ان لوگ کے آپس میں جب اس کو پتہ چل تو بڑا غصہ آیا اس کو عیسو کو کہ یار یہ کیا ماجرا ہوا میرے ساتھ. غصہ تو اس کا یعقوب علیہ السلام تو بیچارے ویسے کمزور تھا کہ یار یہ کیا ہو. تو ان کی اماں نے بولا تو بیٹا ایسا کر, نکل لو یہاں سے, کہاں پہ اپنے عراق کے سائڈ پہ اپنے ماموں کے پاس چلے جا. تو ورنہ تو اب ڈر لگا ان کو کہ یار یہ تو تم جو نہیں یعقوب چلے جاؤ اپنے وہاں پہ. ان کے کیا نام ہے, جو ماموں جو تھے ان کا نام تھا لابان, پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کسی مطلب لابان میں. تو وہ جو ہے چلے گئے ان کے پاس, اور وہاں پہ نظر تم وہاں پہ ادھر رہو کچھ عرصے تک, جب تک کہ تمہارے بھائی کو غصہ کم ہو جائے گا, کچھ سالوں کا تم آ جانا. یعنی کہ ماں کو بھی غصہ تھا اور اس کو بھی غصہ تھا. وہ چلے گئے وہاں پہ. اب جب وہاں پہ گئے اور ان کے پاس کچھ عرصہ وہاں پہ کام کرتے, تو وہ ان کا کام تھا یعنی بکریاں چرانا.
तो उन्होंने देखा तो उनके जो मामू ने बोला कि मेरी 2 बेटियां तुमसे शादी करना चाहते हो। उन्होंने बोला हाँ माँ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फिर छोटी जो बेटी उससे शादी करता हूँ। बोला ठीक है, अगर शादी करना है तो 7 साल तुमको बकरी चलानी होगी, तुम्हारी से शादी हो जाएगी। बोला ठीक है भाई, 7 साल बकरियां चलाई। 7 साल के बाद जब बकरियां तो जब रात के टाइम को वो हुआ कि भाई चलो अब तुम्हारी शादी हो रही है, देख लड़की दी, तो पता चला कि जब जैसे यानी कि आदमी अपने घर वालों के साथ कर लेते हैं जमा कर, जब निकले तो दूसरे दिन जब दिन में देखा तो उसने तो वो तो उसकी बड़ी बहन। कहने मामू ये क्या, आपने तो बड़ी बहन दे दी मुझको, तो मेरे को छोटी सी शादी करनी थी। कहने नहीं हमारी शरीयत में ऐसे नहीं होता, हमारी शरीयत में ये है कि लाजमी है कि पहले बड़ी की शादी होगी फिर छोटी की शादी होगी। अगर तुमको छोटी सी शादी करनी 7 साल और बकरी चलाओ। उसने बोला ठीक है मैं 7 साल और बकरी चला रही हूँ। तो उस अरसे में जो तकरीबन ये 7 साल जो थे जो पहली बड़ी बेटी के साथ, तो उसमें उनके बेटे हुए 3-4 बेटे उस अरसे में हो गए, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे उसमें हो गए। फिर जो है इनसे शादी हुई तो इनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। इनकी कोई दूर से थी लोंडियां थी, उन्होंने बोला कि आप इससे कर ले, इनके बच्चे होते गए तो 7-8 बच्चे शुरू हो गए उनके, और इनके कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर दुआ करी अल्लाह से कि अल्लाह, और छोटी का नाम क्या था, राहील बताया था ना को, राहील, और बड़ी का नाम था लिया। तो राहील से कोई बच्चा नहीं, तो उसने दुआ करी कि यार, और लिया जो थी बहुत खूबसूरत थी, और खूबसूरती इसकी कहां से थी, बोल के इतनी खूबसूरत थी कि इसने जो ना जो सारा की जो खूबसूरत थी ना, खूबसूरती जो सारा की थी वो इसमें मुंतकिल हुई, तो ये बहुत खूबसूरत थी। तो दुआ करते रहे कि अल्लाह मेरे को, तो अल्लाह ताला ने दुआ इसकी कबूल करी। तो इनका पहला बेटा हुआ यूसुफ, और यूसुफ बहुत ही खूबसूरत थे, यानी उनकी शक्ल ऐसी थी कि उनको जब देखते थे ना तो दिल चाहते कि नजर हटाओ, इतने खूबसूरत थे वो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और कुछ अरसे के बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बिन्यामीन पैदा हो गए। उनके जो भाई जो हैं वो इन्हीं से थे, यानी लिया से, सॉरी राहील से। फिर जो है कुछ अरसे के बाद राहील जो है ना वो फौत हो गई, जो दूसरी बीवी जो थी ना वो फौत हो गई। फिर याकूब अलैहिस्सलाम जो है अपनी पहली बीवी के साथ जो फिर वो हिजरत करने चले गए। कहने कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कि अब इतना अरसा हो गया मेरे पास, यहाँ पे टाइम गुजार लिया वहां पे, तो कहने कि अब जो उनको शौक हो रहा है कि यार अपने घर वालों की तरफ वापस जाऊं। तो उन्हें बात करी अपने मामूस के में जाना चाह रहा हूँ। तो उन्हें ठीक है भाई तुम 2 साल और यहाँ पे रह लो, तो ये होगा कि इस 2 साल के अंदर जो भी बकरी जो पैदा करेगी ना, बच्चा पैदा करेगी ना, वो तुम्हारा होगा। तो उस 2 साल के अंदर माशा जितनी बकरी सारे के सारे माशा बकरी बच्चे भी दिए, और तो उनके पास अच्छे खासा जो ना माल दौलत हो गई, और वहां से चले। जाते वक्त जो था उनके, जब रास्ते में जा रहे थे, मैं बताना भूल के, जा रहे थे तो रास्ते में उनकी एक जगह पड़ी, वो वहां पे सो गए। तभी तो रास्ते में कोई बाग सा था, वहां पे सो गए, और कुछ नहीं मिलते कि पत्थर दिया, पत्थर लेके उसको सारा के सो गए। उन्हें ख्वाब में देखा कि फरिश्ता ने उनको बशारत दी कि तुम्हारी जो ना यहाँ पे नबूवत होगी, और तुम यहाँ पे जो ना अल्लाह के लिए जो है ना, और तुम्हारे जो ना बच्चे भी पैदा होगा, इसकी बशारत दे दी, और ये भी बता दी कि तुम्हारी जो ना नबूवत होगी तुम्हारे अंदर, और नबूवत तुम्हारी नस्ल में चलेगी। तो जब उठे तो बहुत खुश थे। उस खुशी के अंदर उन्होंने बोला कि यार क्या करूं, उसी पत्थर की जगह में निशानी लगा दी कि मैं जो है यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह के लिए घर बनाऊंगा जिसमें मैं इबादत करूंगा पूरी जिंदगी। तो ये जगह थी ना, फिर वहां पे बैतुल मक़दिस बनाया था उन्होंने, मस्जिद अक्सा। फिर कहीं वापसी के अंदर आते वहां पे जो है फिर बैतुल मक़दिस बनाया। तो जो बैतुल मक़दिस को फिर बाद में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी दोबारा तजदीद करी थी उस घर की। तो उन्होंने जो है बैतुल मक़दिस बनाया, और जो उनके चचे जो थे और उनके जो दादा जो थे इब्राहिम और इस्माइल, उन्होंने जो है घर बनाया था मक्के में। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इन दोनों के दरमियान में कितना है, तो बोला कि इन दोनों के दरमियान में है 40 साल, तकरीबन 40 साल है इन दोनों के दरमियान में। तमाम याकूब अलैहिस्सलाम वापस से अपने बाप के पास, इसहाक के पास, और बहुत खुश हुए उनके ऊपर। और कुछ अरसा होते कि फिर इसहाक अलैहिस्सलाम फौत हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम फलस्तीन के अंदर उन्होंने फिर मकाम कर अपना वहीं पर रहे, और फिर वहां पर जो है किस्सा शुरू हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तमाम एक मरतबा याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो बीमार हुए थे, तो इक़्क़ निस्सा की बीमारी हो गई थी। तो उन्होंने अल्लाह से एक नजराना करा कि अल्लाह अगर तुमको शिफा दे देना तो मैं जो है ना जो मेरे पसंदीदा चीजें मैं छोड़ दूंगा। तो उन्हें अपने ऊपर जो है ना ऊंट का गोश्त और उनका दूध जो है ना अपने ऊपर हराम कर लिया था। अल्लाह ने हराम नहीं करा था, लेकिन अपने नजराने पेश करते जब उनकी शिफा हो गई तो अपने उसको खाना छोड़ दिया था।
طبعا اس کا قصہ جو ہے دوسرے سپارے کے شروع میں ہی ہے، نہیں چوتھے سپارے میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام کے جو فوت جو ہوئے تھے مصر کے اندر فوت ہوئے تھے، جبکہ یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا وہاں پہ، ان کی تقریباً عمر 130 سال ہو گئی تھی، اور اس میں سے 17 سال میں جو ہے مصر میں گزارے تھے، اور 147 سال جو ہے اقام مصر 17 سال ربی، 17 سال مصر کے اندر رہے، پھر جو ہے فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام جو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس سے وہ اس سے سفارش کری کہ میں جن کو لے کر جا کے اور فلسطین میں جن کو دفنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس میں بولا ٹھیک ہے ان کو آپ لے جاؤ، اور پھر وہ فلسطین میں دفن ہوئے، اپنے دادا کے برابر میں، اور ان کے والد کے بھی وہیں پہ دفن ہوئے، ابراہیم اور اسحاق دونوں وہیں پہ ہیں۔ طبعا یعقوب علیہ السلام بولنے کہ وہ بہت ہی یعنی کہ حریص تھے اپنی قوم کی دعوت کے لیے، اور اپنے بیٹے کو بھی وصیت یہ کرتے تھے کہ اگر میں جب حتی مرنے کے ٹائم جب ان کو فوت آئی تھی اور فوت ہو رہے تھے، تو میرے بیٹے سارے بیٹوں کو جمع کرو، تو کہنے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہنے کہ ہمارے والد صاحب آپ کے اور آپ کے باپ اور دادا کی جو خدا ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے، ایک اکیلا خدا ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین اور وہ دونوں جو بھائی ہیں سگے، اور باقی ستیلے بھائی تھے ان کے، جو باقی سارے کے سارے بھائی سارے ستیلے ہیں، اور ان کی جو قصہ جو فلسطین کے اندر بھی شروع ہوا، فلسطین میں لوگ رہتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، 11 بھائی تھے ان کے، اور بہت ویسے خوبصورت تھے، اور اپنے کے والد کو بھی ان کو بڑی پسند تھے۔ آپ کو پتہ کہ جو انسان چھوٹا ہوتا ہے اس سے زیادہ، اور سارے کے سارے بڑے تھے، تو ان کو اس سے زیادہ محبت تھی، تو چھوٹا بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا اور فرما بردار بھی تھا، اور تو اس کے لیے زیادہ ان کی جو دل جو مائل ہوتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑی ایک عجیب سا خواب دیکھا انہوں نے، اس سے پہلے خواب دیکھا تھا وہ بھی بتایا، لیکن دوسرا خواب انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں سورج اور چاند کو میں نے دیکھا سارا مجھ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، ان کو پاس علم بھی بہت تھا، آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، علم ساروں کے پاس تھا، تو ان کے پاس علم تھا، ان کو پتہ چلا کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی بن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے امتحان بھی لے گا، اور اس کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل ہو۔ تو انہوں نے بولا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کو اپنی قصہ نہیں بتانا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، کیونکہ شیطان جو ہے بہت یعنی کہ حسد وسد ڈال دیتے دلوں کے اندر، اور ان کے پاس علم بھی تھا، رؤیا یعنی کہ خوابوں کی جو تعبیریں جو تھیں نا وہ ان کے پاس تھیں یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ تو انہوں نے ان کو یعنی خبردار کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا یہ خواب جو ہے۔ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی جو تھے 11 بھائی جو تھے، وہ اس چیز سے بڑے تنگ تھے کہ یار ہمارے ابا جو نا کچھ زیادہ ہی لاڈ اٹھاتے ہیں ہمارے اس بھائی کے، اور ہم جو ہیں جوان ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم سارے گھر کو سنبھالے ہوئے، ہم محنت کرتے ہیں، اور انسان کو جو فخر بھی ہوتا ہے اپنے جوان بیٹوں پہ فخر ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میرے جوان بیٹے ہیں، چھوٹوں پہ تھوڑی فخر ہوتا ہے۔ تو ان کے دل میں ایک تھوڑی سی بات ہے، انہوں نے بولا ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ یار اب ہمارا ابا کو جو ہے نا ہمارے جو یوسف اور جو بنیامین سے زیادہ محبت ہے جو راحیل کے جو بیٹے ہیں، اور ہم کو تو لگتا ہے کہ ہمارے ابا جو گمراہ ہو گئے ہیں یار اس معاملے میں۔ اب آپ دیکھیں شروعات جو تھی وہ کس چیز سے تھے کہ حسد ہے آپس میں، ابھی چاہتے تو اپنے والد سے پوچھے تھے بھائی آپ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں، تو بتا دیتے، ایک ڈسکس ہوتا ہے نا ماں باپ اور بیٹوں کے درمیان میں ڈسکس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے پہلے اپنی طرف سے الزام لگا، پہلے تو تہمت لگا دی، اور پھر جا کے الزام لگا دیا کہ یہ تو گمراہ ہیں۔ اب ایک باپ جو نبی بھی ہے اور اس کو گمراہ کہنا تو بڑی، لیکن عموماً شیطان کا دن تھا وہ کام جو کرنا تھا، تو وہ گئے اپنے آپس میں مشورہ کرا کہ یار کیا کریں، کیسے کریں کہ ہم ابا کو جو اپنی طرف جو ہے نا تھوڑا سا ان کا رجحان اپنی طرف لے کر آئیں۔ تو ایسا کرتے کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ایک تھا کچھ تھوڑا سا خبر تھا، انہیں بھائی قتل نہیں کرو، ایسا کرو کہ اس کو جو ہے نا کسی دوسری دور جگہ میں چھوڑ کر آ جاؤ، کسی دور وہیں بھوکا پیاسا جو ہے صحرا میں مر جائے گا۔ ایک نے بولا نہیں ایسا کرتے ہیں جہاں پہ قافلے چلتے ہیں نا جو مسافرین ہیں، ادھر ایک کنواں ہے، ادھر اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جو نا آتے چاہتے کوئی قافلہ جو اس کو ہٹا کے لے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی اس سے۔
तुम कत्ल से ही बच जाओगे और उसको इतने बड़े गुनाह से बच जाओगे। तो उनकी जो ना, उन्होंने बोला यार ये आइडिया सही है, उस पर उनको मुत्तफिक हो गए। फिर आए अपने बाप के पास और उनसे बोला कि हमारे अब्बा, आप जो है ना हमारे ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप अपने पास इधर रखे हुए, तो हमको अच्छा लगता है कि हम भी अपने साथ जो है ना लेकर जाएं उसको, थोड़ा सा हम साथ खेलेगा और कूदेगा और उसके थोड़े से रिलैक्स हो जाएगा और हम भी खुश होंगे हमारे। तो उनके अब्बा ने बोला कि उनके दिल में थोड़ा सा वो खौफ था उनसे, कहने कि नहीं, मुझको लगता है कि मुझको बस एक चीज का डर है कि तुम खेल कूद में लग जाओगे, पीछे से जो ना वो गिदड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेड़िया आएगा पीछे से और उसको खा लेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। कहने बाप जी, बाबा ये कैसे हो सकता है, ये हम जो हैं इतने बड़े 11 भाई हैं, ताकतवर हैं, और अगर हमारा भाई हमारे सामने खाए तो बहुत नुकसान की बात है हमारी, तो किसी फायदे की नहीं हम रहे थे। उन्होंने पीछे लगे जब तक उन्हें, फिर उनको बोला ठीक है तुम ले जाओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाओ। जब लेकर गए वहां पे थोड़े से अपने गांव से दूरी हुए थे, उन्होंने उसको जो पीटना शुरू करा है, मारना शुरू करा, बेचारों उनसे माफी मांग रहा है, भाई क्या हो, माफ कर दें, आप रो रहे हैं, आंसू आंसू बह रहे हैं कि मैंने करा क्या है। उनको तो वैसे जो दिल में उनका जो गुस्सा था ना, वो सही तरह निकाल दिया उन्होंने। और उसकी उम्र उस वक्त 6-7 साल ही थी, यानी कि छोटा सा। और फिर जब वहां पे गए तो कुएं के पास, उसको ने कमीज उतारी और उसको जो ना वहां पे जो ना कुएं के नीचे डाल दिया, और डाल के बहुत अच्छा खासा गहरा था, और चल दिए वहां से। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में डाला कि तुम जो नहीं, तुम्हारी इम्तिहान है, लेकिन तुमको बचा लेगा इससे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम चुपचाप होके बैठ गए वहीं पे, और जो है ना उनके दिल में भी डाल दे कि इंशाल्लाह तुम यहाँ से निकलोगे, तुम्हारा बहुत अच्छा जो है ना हाल होगा, और तुम ये दिलाओगे, याद दिलाओगे तुम ये मेरे साथ करा था तुम लोगों ने। और वो वहां बैठ गए। तो यूसुफ के अलैहिस्सलाम जो भाई जो थे वो वापस आए, और रास्ते में क्या होता है कि भेड़िया से नजर आया उनको, एक दुम्बा सा नजर आया, उसको कत्ल करा, उसका खून जो है ना अपने उसकी कमीज में लगा दिया और अपने बाप के पास आ गए, और कहने के रोते हुए आ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि देखे हम तो भाग गए थे भाग दौड़ के लिए, और पीछे से उन्हें भेड़िया आया, उसने जो हमारा भाई को खा लिया। अब वो देख रहे हैं, कमीज को देख रहे हैं, बोल रहे हैं ये कैसा भी है भाई, ये कैसा खाया इसने, कि कमीज पे खून तो लगा है लेकिन। और खुद ही उसी वक्त तो अपने बाप से क्या बोले कि आप हमको यकीन नहीं करेंगे हमारी बात का, हम तो आपको बोले कि खून भी लगा हुआ है इसको, हम यकीन नहीं करेंगे। यानी जैसे इंसान नहीं बोलते कि हम झूठे हैं, ऐसे उनको बोला कि आप हमको यकीन नहीं करें, चाहे हम आपको जो भी सबूत दे दें। तो वो ने जब देखा ना बड़े हैरान हुए, कह रही ये कैसा था भेड़िया जिसने कमीज भी नहीं फाड़ी और खा भी लिया यूसुफ को। लेकिन वो उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ा, और उन्होंने जो है ना अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह इन लोगों को बोला कि तुम्हारे कोई तुमने चक्कर चलाया है, और तुम्हारे दिल में कोई ना कोई मामला है, कोई तुमने चक्कर चलाया है, और मैं अल्लाह से जो ना मदद मांगता हूँ कि तुम लोग किस सिफातों के आदमी हो, मैं अल्लाह से बस मदद मांगता हूँ। और सब्र मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा, और सब्र जमील, कि सब्र जमील कहकर अपने आप को जो इत्मीनान करने के इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और अल्लाह से जो है ना अल्लाह से जो है ना उन्हें रुजू कर लिया कि अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह तू ही जो है ना मुझको सब्र दे, और जो है ना बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुझको मिला देना। तो वहां से फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये हो कि वहां से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वहां कोई काफिला गुजरा, उसने जो है बाल्टी डाली नीचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाल्टी पकड़ी तो उसमें लटक गए, उसे निकाला तो बोला ओ एक कौम, ये तो इसमें तो बच्चा है, और बच्चे भी खूबसूरत। उन्होंने बोला कि अब उनको डर लगा कि यहाँ पे कोई फैमिली आई होगी, बैठी होगी, कुछ लोग गुजरेंगे, इसको भूल गए, उनको वापस आके इसको ले लेंगे। तो उसको उठाकर जहाँ पे सामान होते सामानों के साथ उसको शुमार कर दिया, वहां से निकल दिए फौरन। और यूसुफ इस्लाम भी चुपचाप रहे, उनको कुछ नहीं बोला। बोले या तो उनकी लैंग्वेज चेंज होगी एक दूसरे से, या उन्हें इस नहीं बोला कि अगर इनको पता चल जाएगा, उनको बता दी कि मेरे भाई ये हैं वो हैं, तो मुझको जाके दोबारा भाइयों की तरफ भेज देंगे, फिर मेरा वही हशर करेंगे वो। तो चुपचाप रह के देखने जा कहाँ रहेंगे। यूसुफ इस्लाम चुपचाप रहे और चल दिए वहां से, फलस्तीन से चले वहां पे, और कहां पे पहुंचे ये लोग, मिस्र में। जब मिस्र में पहुंचे तो वहां पे जैसे पहले जैसे मार्केट में घुसे ना, जैसे किसी बंद ने जो बोली लगाई उसको उठा के बेच दिया फौरन, इस डर से कि यार इसके घर वाले अगर आ गए और उनको पहचान लिया तो ये तो हमारी पैसे निकल जाएंगे। तो उसको जैसे पहले बनता है, तो जिसको खरीदने वाला था वो एक अजीज मसर, यानी कि मसर के अंदर जो ना एक अच्छा मकाम का जो ना वजीर के टाइप का ऐसे जो ना उसकी जगह यानी कि मकानत थी,
उसने खरीदे, उसके कोई बच्चे उच्चे नहीं थे, तो ले गई अपने फैमिली के अंदर, अपने बीवी के पास, और कहने लगी, यार देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको जो हम पाल लेते हैं और इसको अपना बेटा बना लेते हैं। और जो है हमारे पास इंशाल्लाह बड़ा भी हो जाएगा और इंशाल्लाह हम इससे फिर फायदे भी उठा लेंगे। तो वहां फिर अल्लाह ताला ने उनके पास इतनी एक नेमत करी कि वहां पे फिर जो अपनी उनकी अच्छी खासी रहाइश की जगह भी अच्छा हो गया, इज्जत से पलने रहने का भी मौकाम हो गया, और पढ़ाई लिखाई भी उनकी वहां पे उसी घर में हो गई। लेकिन जितने बड़े होते जा रहे थे उनमें खूबसूरती में इजाफा हो रहा था। खूबसूरत तो थे बेतहाशा, और खूबसूरत तो अब उनके पास, जब आपको पता है जब बंदा जो है बड़ा होता है तो जवानी भी होती है उसमें, जो आती रहती है तो उसमें और भी खूबसूरती। तो इसी दौरान जो मिस्र की जो वो जो अजीज मसर जो थी, उसको जो है उसका दिल इस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ना यानी कि आने लगा, और उसने ना मोहब्बत करने लगी। एक दिन ये हुआ कि अब आपको पता है ये भी बेचारे जवान थे। अब आपको पता है जवानी जवानी होती है, फिर एक इंसान जवान, और फिर ऐसी जगह पे जहां पे उसको कोई जानता भी नहीं है, ना तो कोई बाप, ना कोई बहन, ना कोई जानने वाला, ना कोई चाचा, कोई भी जानता नहीं है। तो ऐसे बंदे के लिए तो बोलते हैं गुनाह करना भी आसानी होता है, मतलब भाई मेरे को कौन जानते हैं यहाँ पे, अगर मैं गुनाह कर भी लूं तो मुझे कौन देखेगा। तो इसने क्या करा, अब यहाँ पे इस यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इम्तिहान शुरू हो गया, और उसने उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया एक दिन, और उसने शायद दरवाजे बंद करे, ये अजीज की जो बीवी थी, दरवाजे बंद करे, उसने बोला जो ना पूरी खूबसूरत और तैयार हुई, और कहने के जो ना मैं तुम्हारे लिए तैयार हो गई हूँ और तुम मेरे पास आओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तौबत करी इस फितने से, क्या मुझे इस फितने से बचा थे। और फिर उसे कहने कि मैं कैसे खियानत करूं एक ऐसे बंदे की जिसने मुझको खरीदा और मुझको अच्छी तरह से तरबियत करी और मुझको पाला बड़ा और इतना बड़ा करा, तो मैं उसके साथ कैसे गद्दारी करूं, ये तो जुल्म हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन लेकिन शैतान अपना काम कर रहा था, जो औरत के उसके दिमाग में तो शैतान ही घूम रहा था। तो वो जो है उसके कहीं जबरदस्ती के नहीं, तुम जबरदस्ती तुम मेरे पास ही आओ। तो यूसुफ इस्लाम ने क्या करा, जो शाब थे उन्होंने अल्लाह ताला ने एक आयत से दिखाई कि उनको जो साबित हो गए अपने बात के ऊपर, और वो जो है इस फिक्र में रह गए कि मैं किस तरीके से इनसे जान छुड़ाऊं अपनी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लगे वहां से, उनके दरवाजे की तरफ भागने लगे कि मैं इस जगह से, किसी ने ये फितने की जो जगह है ना, इस फितने की जगह से मैं बच जाऊं मैं। तो जब भागने लगे और दरवाजे की तरफ भाग रहे, तो पीछे से उन्होंने क्या करा, औरत ने उनको खींचा पीछे से, तो उनकी कमीज फट गई। तो उसी दौरान दरवाजा खुल गया, तो देखा तो उनका शोहर उधर खड़े हुए उसकी तरफ देखा था कि देखने ये क्या हालत, ये क्या मंजर में देख रहा हूं। और तो और उसकी औरत ने फौरन के फौरन जो है मौके से फायदा उठाया, कहने कि अजीज तुम देखो यार ये कैसा है, कैसा बंदा है ये कि तुम्हारे घर वालों के साथ गलत हरकत कर रहा है। यानी कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई हुक्म होना चाहिए, उसको जो ना लाजमी इसको जेल में डालना चाहिए, ये इसको दर्दनाक तुम अजाब दो कोई। यूसुफ इस्लाम उसी वक्त बोला कि भाई मेरे इसमें कुछ नहीं, इसने बल्कि ये यानी इसने शुरुआत करी, ये जो हरकत कर रही थी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी जान छुड़वा रहा था। तो उसी दौरान में कोई आदमी था, कह रहा है कि वहां पे खड़ा हुआ था, जिसने जो जो इसी के घर वाले में से था, जिसकी बीवी के घर वाले में से था, उसने बोला कि तुम देखो अगर कमीज आगे से फटी है ना, तो फिर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वही मुजरिम है, और वो जो है वो पाकीज़ा है, उसने कुछ नहीं कहा अगर कमीज आगे से फटी हुई है। और अगर पीछे से फटी है तो फिर तो उसकी गलती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक है। तो जब उसके शोहर ने देखा कि हाँ वह कमीज से पीछे से फटी हुई है, तो उनको पता चल गया, और पता चल गया कि यूसुफ जो बिल्कुल सच्चा आदमी है। और अल्लाह ताला इस बंदे को सुभान अल्लाह यानी इस मौके के ऊपर वजूद में लेकर है कि सुभान अल्लाह कि उसी के घर वालों से कोई गवाही देने वाला था। तो जब कमीज को नहीं देखा तो पीछे से फटी है, तो उन्होंने बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोला, और उनसे बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात को दरगुजर करो, और अपनी बीवी से बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, और ये जो है ना तुम्हारे कुछ चक्कर वक्कर है, क्योंकि तुम जो है ना तुम लोग की मक्कारी बहुत ज्यादा तेज होती है। और अब देखें कि अजीज जो था ये अपनी यानी शख्सियत इसका इंसान होता है कि ऐसे मौके पर तो यानी कि गुस्से का किरदार अदा करता है, लेकिन उसका गुस्सा नहीं था, उसने बोला ठीक है, उसको दरगुजर करके उसने बोला चुप हो जाओ। लेकिन आपको पता है ऐसे जो मामला होते हैं फिर छुपते नहीं है, बल्कि ये बात जो फैलनी शुरू हो गई है। और घर वहां से निकल के आसपास जो उनके जो बड़े बड़े जो खानदान होते हैं, जो बादशाहों के खानदान होते हैं, वजीरों के खानदान होते हैं, वो ये बात फैलना शुरू हो गई है
کہ یار وہ عزیز کی جو بیوی تھی اور ان کا جو غلام ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر اس کا دل آ گیا اور اس کے ساتھ یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی، وہ باتیں شروع ہو گئی. اس نے باتیں سنی. اس نے بولا کوئی نہ کوئی تو چکر چلانا ہوگا ان کو سیدھا کرنے کے، ان کو سبق سنانا ہوگا. تو اس نے ایک چکر چلایا، سوچا، اس نے ان کی دعوت کری کھانے کے اوپر کہ بھائی تم سارے کا سارا میرے پاس کھانا ہے، اور عورتوں کے لیے بٹھایا ان کو لائن سے، اور ان کو جو ہے سب کے سامنے تھالی رکھ دی، پلیٹ رکھ دی، اور اس میں ہر کسی کے سامنے چھری رکھ دی، جو تیز دھار والی چھری ہے نا وہ رکھ دی ان کے ہاتھوں کے، کہ تم کھانا شروع کرو. انہوں نے کچھ نے فروٹ اٹھا لیا، فروٹ اٹھا کے کھا رہی تھی کہ اسی کے دوران جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تیار کرا، خوبصورت سے کپڑے پہنائے، صاف ستھرا بالکل، یعنی کہ ان کو ویسے حسن ان کے اوپر تھا. جب ان کو تیار کر جائے گا تو پھر کیا، تو ان کے اوپر بولا کہ تم جو ان کے اوپر ان کے مجلس میں داخل ہو. تو فروٹ کاٹی رہی تھی کہ ان کی نظر اس کے اوپر پڑی، تو سارے کے سارے حیران سے ہکا بکا ہو گئے، اور ایک آواز سے کہنے کہ نہیں 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 نہیں، یہ انسانوں میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی بڑا عظیم فرشتہ ہے بھائی، اتنا خوبصورت. اور اسی دوران اسی ہکے بکے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے. یہاں پہ جو ہے پھر یوسف علیہ السلام، وہ جو عزیز کی بیوی جو تھی نا، اس نے بولا میں نے بھی اس کو جو ہے میری بھی عقل ایسی ساتھ گمراہ ہو گئی تھی اس کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو تم اس کو جیل میں ڈال دوں گی، اور یا تو اس کا جو ہے بڑا برا حشر کروں گی، اور میں نے تو صرف یہ بولا تھا، تم نے ہاتھ ہی کاٹ لیے، تو تم سے بھی گئی گزری. تو اس کو ایک موقع مل گیا کہ یہ نا بات دبانے کی. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، اور جو ہے نا ادھر اس نے اعتراف کر لیا ان لوگوں کے سامنے کہ ہاں یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کرا تھا، لیکن میرے ہی اس میں پروگرام، میری ارادے غلط تھے. لیکن اب عورت جو پھر عورت اپنی دشمنی میں اتر جائے تو اتر جائے، پھر اللہ معاف کرے. امراۃ العزیز نے کیا کرنا، شوہر سے بولا کہ تم جو ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو، کیونکہ یہ جو ہمارے اس میں نہیں آ رہا، ہمارے چکروں میں نہیں آ رہا، تو اس کو تم ایسا کرو جیل میں ہی ڈال دو. تو انہوں نے جو بڑے جو جیل کے جو وہاں پہ جو تھے افسران، ان سے بات کری اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. اور وہاں پہ جیل میں بیچارے پھر کافی عرصے تک انہوں جیل کے اندر اپنا ٹائم گزارا. اب مصیبت ہے کہ جیل میں تو ڈال دیا ان کو، لیکن جیل میں کس تہمت پہ ڈالی، تہمت نہیں بتائی کہ کیا میرے پاس جرم کیا ہے، وہ نہیں بتایا، اور نہ یہ بتایا کہ کتنے عرصے تک تم جیل میں ہو. بھائی 1 سال 2 سال 1 مہینہ 6 مہینے، کچھ تو انسان جیل میں جاتا ہے تو بولتا ہے کہ چلو جا 5 مہینے کٹ جائیں گے، 2 مہینے کٹ، لیکن یہ بھی نہیں بتایا. تو ظلم پہ ظلم، اور وہ جو ہے صرف اس جرم کے اوپر کہ وہ جو چاہتے تھے کہ اپنی یعنی کہ گناہ سے بچ جائیں. تو وہاں پہ دعا کری تھی کہ یا اللہ اگر تم میرے کو ان لوگوں سے نہیں بچائے گا اور ان کے جو ہے مکر سے اور ان کے دھوکے سے مجھے نہیں بچائے گا، تو تم یا اللہ میرے لیے جیل ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن ان سے تو میں بچ جاؤں گا. تو پھر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور جیل میں جو ان کے ساتھ پھر عجیب واقعات فتنے وہاں پہ الگ، لیکن وہاں پہ جیل میں داخل ہو گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے قصے کے اندر جو ہے نا کافی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے نا، یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا بڑا عجیب سا ہے. اس میں ہر حالت کے اندر دکھایا کہ انسان جب اکیلے میں ہو، غربت میں ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، اپنے سگوں کے ساتھ اور غیر سگوں کے ساتھ، ستولوں کے ساتھ، ماں اپنی کسی اور کی ماں، یعنی کہ ہر حالت کے اندر جو ہے نا. اب دیکھیں بھی، اب جو آگے ہمارا قصہ ہوں گے جیل کے اندر ہے. اب جیل کے اندر کے ساتھ کیا ہوا، جیل کے اندر ان کا یہ ایک مشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا نا، اور وہاں پہ ان کے اوپر وحی بھی آتی تھی، اور وہاں پہ اپنا مشن وہاں پہ جاری رکھا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا. جیل کے اندر ہر کسی کے وہاں پہ عبادت کرتے تھے، راتوں کو نمازیں پڑھنا، اور دن کے اندر ہر کسی بیمار کی عیادت کرنا. جیل میں ہوتے ہیں لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، بیماروں کی عادت کرنا، ہر کسی کا دل ہلکا کروانا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، مدد کرنا، یعنی ان کا یہ کام تھا کہ مسلسل لوگوں کو دعوت دینا اللہ کی طرف. تو اس طریقے سے سبوں کے جیل کے اندر پتہ چل کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا نیک بندہ ہے، اور یہ جو ہے نا یعنی کہ شریف بندہ ہے، اور اس کا بڑا علم آدمی. سارے کے سارے جیل والے ان کے اوپر خیال اہتمام کرتے تھے کہ کچھ پوچھنا، کچھ معلوم کرنا تو ان کے پاس کرتے تھے. ہوا ایسا کہ بادشاہ کی جو محل جو ہے نا، اس میں جو ہے 2 بندے ان کی جیل میں آئے، 2 بندے جیل میں آئے کچھ عرصے کے لیے. اور وہ بندے کون تھے، ان کا اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو بادشاہ کی وہاں پہ جو تھا بات چل گئی کہ لوگوں نے ان دونوں کو جو ہے رشوت دی. پہلے کو رشوت دی، ایک جو ہے نا بادشاہ کے لیے پانی پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، اور پانی پلانے کا یعنی کو پلانے کا کام. دوسرے جو کھانا پکانا کچن کا کام کرتا تھا. تو جو پانی پلاتا تھا اس کو جو ہے بولا کہ لوگوں نے رشوت دی کہ تم جو ہے نا اس میں زہر ملا دو اور بادشاہ کو پلا دو. اس نے بولا میں ایسے نہیں کروں گا. اور جو کچن والا تھا اس کو بولا کہ تم جو ہے نا تم زہر ملا دو اور بادشاہ کو تم کو پیسے دے دیں گے.
वो मान गया, उसने जहर मिला दिया। तो जब खाना पेश किया गया उनको, बादशाह को, तो ये जो जिसे पानी पिलाता है उसने मना कर दिया कि अभी खाना नहीं खाइएगा, उसमें जहर है। उसने बोला नहीं, बल्कि शराब में जहर है। इन लोगों के आपस में झगड़ा हो गया। बादशाह तो चौकन्ना हो गया, उसने बोला यार ये तो कोई माजरा है इसमें। उसने बोले इधर तुम जेल में लेकर जाओ, फिर देखते हैं कौन है। और बोले खाना अलग और पीना जो है अलग अलग, जानवरों को दो और जानवर को, देखने में से जो मरेगा ना हमको पता चल जाएगा कौन इसमें सच्चा और कौन झूठा है। तो ये दोनों जेल में चले गए। इन तो दोनों पे इल्जाम था कि बादशाह के ऊपर यानी कि जुर्म। तो इन्होंने देखा ख्वाब के अंदर कि एक जो है बादशाह को जो है पानी पिला रहा है, और एक ने बोला शराब पिला रहा है कि मैं शराब जो है निकाल रहा हूं, ठीक है ना, शराब बना रहा हूं। और दूसरे ने देखा कि मैंने देखा कि मैं अपने सर के ऊपर रोटी रखा हूं और उसमें से जो है ना कौवे खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आप हमको बताएं इसकी क्या तफसीर है, इसकी क्या, हमको तो पता नहीं भाई, और हम तो आपको देखते हैं आप नेक बंदे हो और आपके पास इल्म भी है, तो आप हमको इस चीज का बताएं क्या इसका क्या मायना है। तो उन्होंने अब यहाँ पे इन्होंने इस चीज से जो है ना मौके से फायदा उठाया, और उन्होंने फौरन फौरन को सबसे पहले दावत दी अल्लाह की तरफ, और उनको बोला कि देखो मेरे जेल के साथियों, तुम ये बताओ क्या बेहतर है कि इंसान अलग अलग बुतों की इबादत करे या अल्लाह की इबादत करे एक ही। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको ये हुक्म दिया कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, और ये सारे जो है ये मुशरिक और बुतों को जो है इबादत छोड़ दें, और यही हमारा दीन है और लोगों को पता नहीं है। और मैं जो हूं अपने माँ बाप के, बाप और दादा के दीन के ऊपर हूं, जो इस्लामी दीन है, और हम अल्लाह को मानते हैं। और ये अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला हमको इस इल्म से नवाजा है, और ये बड़ी फजीलत है, लेकिन लोगों को शुक्र अदा नहीं करते इस फजीलत के ऊपर। तो उनको तो पता चल गया कि यानी कि जो जब तक कि नतीजा है वहां पे जो बताया था जानवर को खिलाने का, वो कि बकरियां जो मर जाएंगी, जो जिसने जहर खाया वो मर जाएंगी। अच्छा यहाँ पे ये अच्छा, जब उनको दावत के बारे में बता दिया ना, तो फिर उनको फिर बाद में उनको तफसीर बताई कि तफसीर ये है कि तुम लोगों से एक जो है ना, जिसने ये वो उसका देखा ना शराब का, वो जो तुम अपने वापिस नौकरी पे वापस ले जाओगे बादशाह के पास, ठीक है, वो तुमको जो माफ कर, उसको तो पता है कि ये तुम सच्चे हो, तो तुम अपनी नौकरी पे वापस लग जाओगे। और जिसने खाने में जहर लगाया था, तो उसको बोला तुम जो है कत्ल हो जाओगे, और तुम्हारे जब कत्ल हो जाओगे तुम्हारे सर में इसमें परिंदे जो है ना खाएंगे, और ये तुम्हारे यानी कि ख्वाब का जो है ना ये ताबीर है, मैं तुमको बता दिया। और फिर उस वजह से जो जो शराब पिलाने वाले जो साके जो आदमी था, उससे उसको बोला यार तुम अपनी जब नौकरी पे वापस हो जाना, तो बादशाह के पास में मेरा जिक्र करना वहां पे उसके पास, कि मेरे पास वाकई मेरे पास जुल्म हुआ है और मैं जो है यहाँ पे जेल में बैठा हूँ, तो तुम मेरा जिक्र जरूर करना वहां पे। ये यहाँ से निकला अपने बादशाह के पास नौकरी के अंदर ऐसे बेचारा लगा कि वो भूल गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस चक्कर में 7 साल तक जेल में रहे उनके बाद, यानी 7 साल तक जेल में रहे। हुआ ऐसा कि वो बादशाह को एक मरतबा ख्वाब आया, और उसने ख्वाब में देखा कि 7 गायें हैं सेहतमंद, और उनके मुकाबले में 7 गायें कमजोर, और जो कमजोर गायें सेहतमंद गायों को गायें गायें जो सेहतमंद है उनको खा गई। तो बड़ा हैरान हुआ, और उसने फिर सो गया। फिर दूसरी मरतबा उसको ख्वाब आया कि ऐसे ही 7 अनाज जो सेहतमंद है सही सलामत, और सूखे जो अनाज जो उन्होंने इसको खा लिया, सही अनाजों को। तो उठ के अपने वजीरों को जमा कर उसने, भाई मैंने ख्वाब में ये देखा है, इसकी तुम मुझको कुछ ताबीर बताओ। कह लो यार ये तो ऐसे ख्वाब है, शैतान के ख्वाब है, कोई ऐसी आम ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। ये जो बंदा शराब पिलाता था, सबों को पानी वानी पिलाता था, इसने वहां पे सुन लिया कि ये, कहने उसको फौरन याद आया कि मैं इसकी खबर लेकर आता हूँ, मेरे पास एक दोस्त है वो जेल के अंदर, यूसुफ मुझको अभी भेजो, मैं तुमको बता दूं इसकी ताबीर क्या है। तो ये आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम तो हो ही सच्चे, तो मुझको इस चीज का ताबीर बताओ कि ऐसे ऐसे 7 जो हैं गाय हैं सेहतमंद, और उनको जो है 7 कमजोर गायें जो खा रही हैं, और 7 ऐसे अनाज हैं सेहतमंद है, और उनको जो है ना
सूखे जो अनाज वो खा रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला कोई मलामत नहीं करी कि 7 साल से तो कहीं मरा हुआ था क्या, अब आ रहा है कोई मलामत नहीं करी ना कुछ बोला। उनको फौरन तफसीर बता दी कि जो है ये तफसीर है इसकी, और कि तफसीर उसको बता दिया कि पूरा कुरान के अंदर की तफसीर वो है। अच्छा, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हम बता दिया कहने कि तुम्हारे पास में 7 साल ऐसे आएंगे कि जिसके अंदर तुम्हारे पास जो ना नेमत होगी, और उसको जो 7 साल का जो अनाज हो तुमने संभाल कर रखना है। और उसके बाद 7 साल आएंगे कहत के आएंगे, वो 7 सालों के अंदर तुमको जो सामान तुमने संभाल कर रखा हुआ है ना उसमें से तुमने खाना होगा। उसके बाद साल आएगा, उसके बाद जो साल आएगा उसमें तुम्हारी बारिश वारिश होंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 7 साल बीच में कहत के हैं। ये गए जाके बादशाह को उसने बताया तो वो हैरान हो गया कि वाकई किसने तफसीर बताया कि ना भाई जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो उनको जो बड़ा पसंद है उन्होंने बोले उस बंदे को बुलाओ मेरे पास कि उसको जेल से निकालो, मेरे पास लेकर आओ। वो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोला कि भाई आपको बादशाह बुला रहे हैं। मैं बोला मैं नहीं आ रहा अभी, पहले जाओ और उससे पूछो अपने बादशाह से। उससे बोला कि पहले उन औरतों से पूछो जिन्हें अपने हाथ काटे जो थे, उनका मामला क्या है। अब ये तो जहां से कट जाते तो निशान लग जाता है ना, वो तो मिटा नहीं सकते आप, ये तो एक सबूत है। तो जाओ उनसे पूछो, बात से पूछो कि उन औरतों से पूछो कि उनके हाथ काटने का माजरा क्या था। तो बादशाह ने जब सुना तो उन्होंने बोला कि बोला उन औरतों को, तो उन औरतों को बुलाया तो वहां पे जो अजीज की बीवी कहने के हाँ अब हक जो है ना साबित हो गया है, हक वाज़े हो गया है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं, पाक दामन है, उनका कोई उसमें कसूर नहीं है, मेरी गलती थी क्योंकि मेरे नफ्स ने जो है ना मुझको जो है शैतान मेरे ऊपर हावी हो गया था, और वो बिल्कुल पाक है। बाकी औरतें सब ने गवाही दी कि हाँ वो जो है बंदा पाक है और शरीफ है। उस वक्त फिर उसको बादशाह को बड़ा गुस्सा है कि नहीं ये क्या बेचारा 7 साल से जुल्म के अंदर बैठा हुआ है, तो और इतना नेक आदमी, इतना परहेजगार आदमी जो है वो जेल में बैठा है कि नहीं उसको जो है ना मेरे पास लेकर आओ, मेरे स्पेशल खास बंदों से बन जाएगा, उसको लेकर आओ। तब उनकी बरात हो गई। इधर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि 7 साल तक बेचारे जुल्म में वहां पर है कि अगर मैं शायद उसके बाद तो पहली दावत में शायद चले जाता। यानी कि इंसान जुल्म में और कोई उसका गुनाह नहीं है और बेचारा फिर भी 7 साल तक उसने कैद में भी गुजारी। तो रसूल बोल के अगर मैं उसकी शायद जगह तो शायद मैं पहली दावत में चले जाता, यानी कि सबूत नहीं मांगते कि मैंने कब, फिर बाद में करते रहते। लेकिन सुभान अल्लाह, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर भी एक अजीब किस्म का सबर था। तो अपनी पहले बराअत उन्हें साबित करी कि हाँ मैं बिल्कुल पाक दामन में बरी हूं और इनकी सारी गलती थी। फिर उनको एक अपनी अलग ही इज्जत मिली, हत्या कि बादशाह के लेकिन इसको मेरे प्राइवेट स्पेशल बंदों में से रख लो। तो जब वहां पर गए कि तुम जो है ना मेरे पास ही हो गए, मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं। अब ये होता है कि बादशाह आपको जॉब दे रहा है, उन्होंने बोला नहीं मुझे जो जॉब चाहिए वो ये है कि मुझको जो ना जमीनों के ऊपर जो ना मुझको अमीन बना दो, उसका वजीर बना दो, जो जमीन के अंदर जो अनाज आता है और जो जाएगा, क्योंकि मैं हफीज भी हूँ, उसकी हिफाजत भी करने वाला हूँ, और मेरे पास इल्म भी है कि किस तरीके से उसको जो ना गुजारा करना है उसके साथ और किस तरीके से उसको बांटना है। तो वजीर ने बोला, बादशाह ने बोला ठीक है जो इसको इस चीज का वजीर बना दो। तो अल्लाह ताला ने एक जेल से उनको वजारत तक ले गए, वजीर बन गए। तो ये भी बोलते हैं कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर मुसीबत डालता है ना तो यकीन करें कि मुसीबत है जो है ना उसके लिए भलाई होती है कि अल्लाह ताला उसको चाहता है कि एक बहुत बड़ा एक नाम दे, इम्तिहान लेता है ताकि उसको फिर उसका अच्छा से नाम दे। ऐसी जब क़यामत की हम जब पुल को क्रॉस करेंगे, पुल की बड़ी सख्त जगह होगी, लेकिन पुल के बाद आपको पता है डायरेक्ट जन्नत है। तो हर इंसान के जो कोई मुसीबत आती है उसको चाहिए कि मुसीबत से परेशान ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसमें सब्र करे, अल्लाह से जो ना मदद मांगे, क्योंकि उसका अंजाम यकीनन अच्छा है। कुरान कहते हैं फ़इन्न मअल उसरी युसरा, मुसीबत के साथ आसानी है, फिर वो इन्न मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अच्छा आगे चलते हैं। फिर शुरू हो गए, 7 साल वहां पे गुजर गए, वो वहीं बादशाह थे और वो अनाज आते थे और उसको रखते थे, और कुछ जो है वैसे अनाज जो है ना वो खाने पीने में बांटते थे लोगों को। और फिर उसके बाद शुरू हो गए कहत के जमाना, जिसमें बारिशें बिल्कुल बंद हो गई और लोगों की जो है फसलें सूखना शुरू हो गई। उस वक्त जो लोगों को जो है ना तंगी हुई और वो जो है ना आना शुरू हो गए कहाँ पे,
मिस्र के बादशाह के पास, वजीर के पास कि हमको जो कुछ अनाज दे दो। तो हर किसी के लिए मखसूस ये था कि हर किसी जो ना जो ऊंट के ऊपर जो गल्ला आ जाएगा ना वो उसके लिए मखसूस होगा, हर बंदे के लिए। हर ऊंट के ऊपर एक बंदे का गल्ला होगा, तुम लेकर जाओगे हर बंदे का एक एक, ताकि जो ना सबको यानी कि काफी हो जाए। मिस्र वाले आ गए, ऐसे भी फलस्तीन में जो लोग रहते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहन भाई ने भी सुना कि यार वहां पे मिस्र में यार अनाज बढ़ता है यार, वो हर बंदे को देते हैं यार, जो भी जाता है उसको जरूर देते हैं। तो उन्होंने भी तैयारी करी कि यार हम भी चलते हैं, कि वहां पे सुने बहुत अच्छा वजीर है वहां पे, और गए। अब ये लोग गए वहां पे, दाखिल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे को देखो तो पहचान ली। अब यहाँ पे अब तबसरा की कैसे पहचान, और उन्होंने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? ये थे छोटे से 6 साल के, और ये तो वैसे ही बड़े थे, तो बड़ा जो था उसकी शक्ल चाहिए थी ज्यादा, और वो जो जब देखा उनको पहचान लिया, और उनको पहचानने से कासिर रहे। तो जब उनकी बारी आई तो बोला भाई कौन कौन हो तुम्हारे पास, क्या है, क्या सूरत है? लेकिन हमारे हम ये हैं 11 भाई हैं, और हमारा एक भाई और भी है छोटा, और एक बड़ा आदमी भी है, तो अगर आप उनको भी अनाज दे दें तो हम इंशाल्लाह। कहने ठीक है मैं अनाज को दे देता हूँ इस मरतबा, लेकिन अगली मरतबा जो है ना साथ में भाई को लेकर आना, ताकि उसको भी अनाज मिले। बाप बोला है चलो हम उसको एक मरतबा चलो माफ कर देते हैं, उसको नहीं लेकर आओ क्योंकि बड़ा मुश्किल होगी, लेकिन भाई को जरूर लेकर आओ, मैंने तुमको कोई अनाज अनाज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके बदले में कुछ सामान लेते थे उनसे, उनको जो अनाज देके और रवाना कर देते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा ये हुआ, दिल पर ये खटका हो कि यार ऐसा ना हो कि हमने अगर इनसे सामान ले लिया तो दूसरी मरतबा से उनके पास ना हो, और फिर भी भाई तो है ना, हक तो बनता है, और वो भी वजीर के पास आ रहा है। तो उनके दिल में ये नहीं हो कि यार गलत है, इनकी मेहमान नवाजी करने के बजाय उनसे सामान लो। तो अपने लोगों से बोला कि इनका सामान जो लेकर देने के लिए आता है वो वापस उन्हीं के साथ लौटा देना, उन्हीं के साथ ही बंद कर देना, को पता न चले। तो जब वो वापस मिस्र में गए तो उतारा सामान कि भाई अनाज, उनको बताया याकूब अलैहिस्सलाम कि भाई ऐसे सब बंदा है वहां पे बहुत अच्छा है, और ये और सारा ये उसने दिया। लेकिन उसने बोला कि अगली मरतबा में अपने भाई को लेकर आना, वरना तो अनाज नहीं मिलेगा, और दिया। और जब देखा तो सामान वामान खोला तो पता उसमें जो सामान लेकर गए थे वो भी आप लौटा दिया। कि नहीं इससे अच्छा उनको क्या चाहिए यार, ये तो सामान भी हमारा वापस आ गया, यानी और हमको क्या चाहिए कि अब दूसरी मरतबा हमको एक आपको ऊँट भी दे देगा, उसका भी रोज, एक हमारे भाई का भी साथ में लेंगे उसका भी मिल जाएगा। यार इतने यानी कि एक लालच से आ गई कि दिल में कह रही तो बहुत अच्छा है यार, तो माजरा बहुत अच्छा है। तो फिर दूसरी मरसाल उन्हें क्या करा, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पे काफी चीजें कि सुभान अल्लाह, यानी कि इंसान को चाहिए कि जल्दबाजी ना करे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी वक्त बोल सकते थे भाई मेरे भाइयों तुमने क्या करा, नहीं, अल्लाह ताला ने उनके लिए करा, दिल में हुआ कि ठीक है आराम आराम से इत्मीनान से उनसे जो बात करेंगे। और इसमें अब इनकी अभी जो किस्सा हमने जो लिया है इसी के अंदर कितनी वाक़ात ऐसे हैं कि इंसान जो है ना अगर अपनी जिंदगी में उसको यानी कि लागू करे तो काफी चीजों से सबक हासिल होता है उसको। हत्या कहते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से निकल लेते ना तो बोलते जेल के दरवाजे पर लिखा था कि ये जो है ना ये मुसीबतों का घर है दरवाजे पे, और ये भी लिखा है कि जो नहीं जिंदा लोगों का कब्रिस्तान है ये जेल, और दोस्तों के लिए एक यानी कि तजुर्बे की एक जगह है ये। अमूमन फिर हम पूरा करते हैं अपना। जब अरसा गुजर गया वहां पे चले गए, लेकिन यहां पे भी आप देखें जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जहां पे जैसे मिले उनसे अपने भाइयों से, तो उनके माइंड के अंदर पूरी एक हिस्ट्री से जो गुजर गई उनके दिमाग के अंदर, आखिर ये खत्म हो जाएगा है, उनके दिमाग में पूरी जो हिस्ट्री गुजर गई बचपन से कि इन्होंने क्या करा था, मेरे साथ क्या करा, मैं कैसे काफिले में आया, कैसे मलिक अजीज पहुंच रहा, फिर साथ साथ जो जेल में गुजारा यहाँ पे आके मैं इधर जगह पाऊँ, और ये सारा का सारा स्टार्टिंग कहां से थी, इन्हीं की वजह से हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ बोला नहीं उन्होंने, ठीक है ना, अल्लाह ताला उनको चाबरा यानी कि इसमें साबित रखा। और उन्होंने साफ साफ बता भी दिया उनको अगली मरतबा आपने कैसे आना है, अपने भाई को लेकर आना है। अब दूसरी मरतबा ने क्या करा, जब सारे के सारे भाई जमा हुए, मैं बोला कि भाई चलो जो ना अगले साल के लिए हम खाना लेने के, तो अपने भाई अपने वालिद साहब के पास गए और कहने के जो ना हम अपने भाई को साथ में लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि जो ना वहां से अनाज मिल जाए। तो उनके अब्बा को जो फौरन याद आ गया पुराना जमाना, यानी इससे पहले कि मैं तुम पे अमन और तुम लोग को अमानत यानी कि अमन पे रखूं, यानी कि तुम लोग इससे ऊपर भरोसा करो, और इससे पहले तुमने भाई के साथ जो करा था भूल गए तो अपने वो करता, मैं इसके साथ तुमको नहीं भेजूंगा,
कुछ भी कर लो तो इसको नहीं भेजूंगा। तो कहने कि नहीं अब्बा, और हमने जो हमारा तो ऐसा थोड़ी नहीं था, हम आपको कस्में दे रहे हैं और वाद कर रहे हैं और अहद दे रहे हैं आपको कि हम इसको अपने साथ वापस लेकर आ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। सीधे हाथ से कि कुछ भी हो जाए हम इसको साथ में लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ दूसरी बात हुई तो हम नहीं पता, हमको कदर का तो नहीं पता, लेकिन हम आपको अहद कर रहे हैं कि हम इसको साथ में वापस लेकर आएंगे। और उनके वालिद को बड़ा यानी कि याद दिला कि पुराना जमाना तुमने कैसे से करा, लेकिन अमूमन आखिरी में राजी हो गए कि इनके साथ भेजने के। और उनके पास कोई चारा नहीं था, अनाज भी चाहिए और कुछ कहत भी ऐसा पड़ा हुआ है कि खाने को भी जरूरी है और मजबूरी भी, तुम भेज दिया। फिर उन्होंने ये कहा अपने बेटों से, ये बोला कि देखो तुम जो है 11 बहन भाइयों 12 हो, तो जब दाखिल होना तो एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना। लोगों को नजर लग जाती है, हंस हो जाता है कि तुम लोग सारे इतना माशाल्लाह भाई हो और माशाल्लाह पूरे घराने से हो, तो नजर भी जाती है। तुम ऐसा करो कि अलग अलग दरवाजे से दाखिल हो, ताकि जो है ना किसी के नजरों में लग जाए। अब बाप तो बाप है ना, ठीक है बेटों ने जो भी करा, लेकिन फिर बाप तो बाप होता है, उसकी तो मोहब्बत अपनी है ही। लेकिन उनके बच्चों को पता है कि इनके नफ्स में कुछ है, कुछ बात इनके है मामला कुछ, लेकिन गए वहां पे, वो दाखिल हुए और उनको बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि जो है ना खाना वो हम लोग लेकर आए हैं सब। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जिससे बिन्यामीन को देखा ना, वो पहचान गए कि मेरा भाई है ये। तो उनको बोला कि सारे दो दो करके ग्रुप बना दे उनके, तो बिन्यामीन अकेले हो गए। तो बिन्यामीन को अकेले में लेकर गए, उनको बताया बिन्यामीन को कि मैं तुम्हारा भाई हूं, जो भी होगा तुम घबराना नहीं। और उनके दिल में इत्मीनान हो गया, उनको बता दिया कि मैं यूसुफ ही हूं और जो कुछ है उसमें तुमको घबराना नहीं है बिल्कुल। कहने ठीक है। जब इनका सारा सामान ले लिया और दे दिया, इनको सारा सामान तैयारी कर ली, तो उन्होंने क्या करा, जो बादशाह का जो वो होता है ना डोंगा जिससे तोड़ तोड़ के दे रहे थे, वो जो है बिन्यामीन की जो ऊंट जो था ना उसमें जो है छुपा दिया। और ये लोग निकल गए वहां से, महल से जो निकले। तो जैसे लोग निकले तो पीछे से एक ने आवाज दी, वो काफिले वाले तुम तो रुको जरा, ये क्या है? कहने कि हमारा कोई चीज चोरी हो गई है यहाँ पे। कहने क्या चीज चोरी हो गई भाई? पूछे कहने क्या चीज चोरी हो गई? कहने हमारा जो डोंगा जो था ना बादशाह को जो सबसे महंगा जो डोंगा वो चोरी हो गया। वो कहने तुमको तो पता है हम तो बिल्कुल शरीफ लोग हैं, हमारा तो कोई धंधा नहीं है, हम लोग तुमको चोर तो नहीं चोर लगते हैं। कहने हम तो इतने यानी कि पाकीज़े यानी कि दीनदारी से काम करते हैं कि हम जो ना वो लोग जो मिस्र में दाखिल भी होते थे तो जो ऊंट की जो मुंह होता था ना उसको बांध दे देते ताकि कहीं मुंह ना मार लें इधर, और फिर हम किसी मसले मसाइल में फंसेंगे और वैसे अपने कस्में लेकर आएंगे अपने भाई को लेकर आके, तो हम किसी मामले में फंसना नहीं चाह रहे, सीधे जाएंगे सीधे आएंगे। ये कहां से मुसीबत खड़ी होगी? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने कर अगर ऐसा हुआ तो, और चोर तुम में से निकला, देखने अब इनकी शरीयत में क्या था, इनकी शरीयत में देखिए अगर चोर पकड़े जाते हैं किसी के पास चोरी का निकले तो वो जो है जिसकी चोरी करे उसका गुलाम बन जाता है, इनकी शरीयत में था। इनकी जो मिस्र होती उनकी शरीयत में नहीं था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस बंदे से बोले थे आवाज लगाना है तो उससे तुम उन्हीं से फैसला लेना कि तुम फैसला क्या करते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई उसका ठीक है हम फैसला ही करेंगे, जो जिसके ऊपर निकलेगा वो अपने गुनाह का मुर्तकिब होगा, ठीक है उसकी सजा काटे। तो उन्हें तजुर्बा शुरू करा से बड़े भाई से, फिर दूसरे भाई से, तीसरे भाई से, छोटे 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 जो आखिरी में बिन्यामीन के पास से मगना निकल लिया। अब वो परेशान, ये क्या हो गया भाई, ये क्या माजरा है, अब कुछ कह भी नहीं सकते, सामने अपनी आंखें के सामने निकला है। अब वो गए अपने उसके लोगों से माफी मांग रहे हैं कि भाई देखो इसका बहुत बुरा बाप है और हमारे हालात ऐसे नहीं है, देखो इसको छोड़ दो, उसके बदले हम किसी भाई को अपने पास रखो, लेकिन इसको जो है तुम जाने दो बस किसी तरीके से। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो जुल्म की बात होगी कि जिसका जो जिसने जुल्म कर रहा है हम उसको छोड़ दें और किसी और को पकड़ लें, ये तो हमारा जुल्म होगा। लेकिन हम तो इंसाफ को देख लें कैसे इंसाफ से काम करते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम तो उसी को रखेंगे जिसका जो ना जिसका जुर्म है। अब बोले कि बिन्यामीन को बादशाह के महल में घुसेड़ दिया, और वो जो है जो बड़ा भाई था उनके भाई मैं तो अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हूं, मैं नहीं जा रहा, तो बल्कि तुम लोग जाओ और अपने अब्बा से बोलना कि भाई वालिद साहब ये मामला हुआ है, और अगर आपको हमको यकीन नहीं कि तो काफिलों से पूछ लो कि हमने वल्लाही कुछ नहीं करा, काफिलों से पूछ लो। अगर फिर भी यकीन है तो जो मिस्र में लोग हैं उनसे आप पूछने कि हमारा कोई कसूर नहीं इसके अंदर, और हम वल्लाही सच्चे हैं, इसमें भी सच्चे हैं हम। सच्चे का जो लफ्ज उससे पहले भी हुआ था कि हम सच्चे हैं, जब हम जो ना तमीज लेकर आए थे ना हम सच्चे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास जो खबर पहुंची तो उन्होंने बोला कि अल्लाह की तरफ रुजू करा और मुंह मोड़ के कहने लगे मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरे को जो है ना
دونوں سے ملاقات کروا دے اور روتے رہے وہاں پہ حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی بنائیوں سفیدی ہو گئی، یعنی کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اتنے روتے رہے اور ہر وقت ان سے روتے تھے یوسف علیہ السلام کی یاد کرنے رہے ہو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بولا کہ جاؤ، مجھ کو پتہ ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہے، اپنے بھائی کو ڈھونڈو اور یوسف کو بھی ڈھونڈو، کاش اللہ میری ان سے ملاقات کروا دے۔ جاؤ پھر وہاں پہ کوشش کرو کہ اپنے بھائی کو واپس دکھانے۔ پھر وہ نکلے مصر کی طرف اور یوسف علیہ السلام کے پاس بھی داخل ہوئے، کہنے کہ عزیز مصر، ہمارے جو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں باپ، ان کے یہ حالات ہو گئے ہیں بہت، اور ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، اور یہ ہے، اور آپ پر صدقہ کر دیں، یعنی کہ کچھ رحم کر دیں ہمارے پر۔ اس مرتبہ یوسف علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی التجا کر رہے ہیں اور میرے باپ اس حالت میں، تو ان سے پھر صبر نہیں ہوا۔ پھر اس وقت ان کو بولتے کہ تم کو پتہ ہے تم نے کیا کرا اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بنیامین کے ساتھ، اور تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کرا؟ تو حیران ہو گئے کہ نہیں، یہ کہ یوسف علیہ السلام کو تو قصہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے مصر میں ہم نے تو کرا تھا، فلسطین میں اور کسی کو خبر بھی نہیں کہ ہم نے کیا کرا تھا، تو یہاں بھی اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو پھر دیکھنے میں غور سے آنکھیں اپنے مسئلے اور دیکھنے کے غور سے کہ یہ ہے کون؟ پھر تھوڑے تھوڑے ملا میں دیکھیں کہ تم یوسف ہو؟ کہ ہاں میں یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کرا ہے اور ہم پہ فضل کرا ہے کہ ہم کو یہاں پہ رکھا ہے۔ تو فوراً کہنے کہ یوسف علیہ السلام کو معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو کہنے کہ اللہ تم کو معاف کرے گا، جاؤ اور میری قمیض لے کے چلے جاؤ، یہ میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا اور ان کی بنائی واپس آ جائے گی۔ جاؤ اپنے بھائیوں کو ساتھ، ان کو ساتھ دیو اور ان سبوں کو لے کے مصر میں آ جانا واپس، اپنے پورے گھر والوں کو لے کے۔ اب بولتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں مصر سے، اور مصر اور فلسطین کے درمیان تقریباً کتنا لمبا فاصلہ ہے، 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں پہ یعقوب علیہ السلام بولے مجھ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھ کو کوئی الزام نہ لگاؤ تو، یعنی کہ تو وہ تو بولے پاگل ہو گئے تم، وہ یوسف مر گیا بچپن میں، کہاں ابھی تک تم اسی کے معاملے میں روتے ہو؟ لیکن ایک نبی تھے، ان کو پتہ ہے، اس خواب کے بارے میں پتہ ہے، اور ان کو سارا معاملہ ہی پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جو اس نے خواب دیکھا ہونے والا ہے، حقیقت ہے وہ۔ تو جب وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے جو قمیض جو ہے اپنے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالی، حتیٰ کہ کہنے کہ آپ اتنا اس کو یاد کرتے ہیں، آپ مر جاؤ گے، آپ ختم ہو جاؤ گے، آپ کا جسم دیکھیں کتنا کمزور ہو گیا ہے، آپ کی آنکھ کی بنائی چلے گئی، آپ پھر بھی ابھی تک روتے رہتے۔ کہنے میں تم کو تو کچھ نہیں کہتا، میں تمہیں سے تو کوئی شک نہیں کرتا، میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں، میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے اور مجھ کو ایسی چیزیں پتہ ہے تم لوگ کو نہیں پتا ہے۔ ایسا سے روتے رہتے تھے، اور جب یہ لوگ آئے تو ان کے چہرے پہ ڈالوں کہ تم کی واپس بنائی واپس آ گئی، اور پھر فوراً کہنے کہ چلو وہاں پہ ان کے بیٹوں نے بھائی جو ان کے بیٹے تھے، جو انہیں بولا والد صاحب ہماری ہم کو معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کہنے میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس وقت میں فوراً نہیں کری، لیکن ان کا یہ تھا کہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا کب؟ سحری کے ٹائم، کیونکہ وہ مغرب کا ٹائم تھا، عشاء کا ٹائم تھا، تو میں سحری کے ٹائم پر اس ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو میں تمہاری استغفار کی دعا کروں گا۔ اور پھر وہ گئے مصر کی طرف۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کو بڑا اچھا استقبال کرا یوسف علیہ السلام نے، اور وہاں پہ اپنے ماں باپ کو جو ایک عرش نہیں ہوتا جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، جو وزیر بیٹھنے جو ادھر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور پھر وہاں پہ جو ان کے 11 جو بھائی تھے ان کے لیے سجدہ کرا، تو وہاں پہ بولے یوسف علیہ السلام کہ یہ ہے وہ میری تعویل جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت بنا دی، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم آپ لوگ کو گاؤں سے لے کے شہر میں لے کر آ گیا ہے، جبکہ میں اور میرے بھائی کے درمیان میں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اتنے بڑے اور یہ ملاقات ان کی تھی تقریباً 40 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ 40 سال آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اگر 6 سال کا ہے تو 46 سال کے بعد اس کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے باپ سے، اچھا خاصا عمر ہوتا ہے، انسان بچپن سے بچہ ہوتا ہے تو مرد ہو گیا باقاعدہ، تو سبحان اللہ وہاں ملاقات۔ پھر وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جو نا دعا کری، یا اللہ تیرے بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرا، یا اللہ تو نے مجھ کو علم دیا، مجھ کو مکانت دی، مجھ کو جگہ دی، اور میرے والدین کو یہاں پر رکھا، یا تو نے مجھ کو علم بھی دی اور حکمت بھی دی، اور اگر تیرا میرے پر مہربان تیرا جو ہے میرے پر اگر یہ رحمت نہیں ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ قصہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ، اور یہ سبحان اللہ یہ قصہ جو ہے احسن قصص کہا جاتا ہے ان کو، اور
कैसे नहीं अहसन कसस होगा, बेहतर किस्सा होगा। और किस्सा कहने वाला कौन था? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुरान तो अल्लाह के कलाम है ना, तो रब्बुल आलमीन। और ये किस्से की बात भी है कि इतना लंबा किस्सा, ये सूरत यूसुफ असल में मक्की सूरत है ना, मक्के में नाजिल हुई थी। और कब नाजिल हुई थी? जब प्रोफेसर बहुत ज्यादा गमगीन थे। गमगीन किससे थे? उसी साल जो है खदीजा रज़ी अल्लाह की फौत हुई थी। उसी साल के जो चचे जो थे, जो उनकी बड़ी हिमायत करते थे, वो फौत हुए थे। उन्हीं साल को यानी उनके दिल में बड़ा जो ना, दिल में बहुत अफसोस था। और वहां पे एक मुशरिक भी था, वो भी लेकर आता था, किस्से लेकर आता था यहूदियों से और आके सुनाता था। और कहते हैं कि यहूदियों ने कुछ अरबियों से बोला था, बदू से बोला कि यूसुफ अल्लाह के नबी से पूछे कि वो बता कौन सा ऐसा नबी था जो कुएं से जो ना एकदम से बादशाह की पहुंच गया था, वो कौन? तो जेल में भी गए थे। आपको उसका किस्सा पता है? तो ये किस्सा ताला बता रहा है अपने नबी के लिए, ताकि उनके दिल भी हल्का हो, को पता चले। और ये पूरा किस्सा जो है एक ही साथ उतरा था, एक ही पूरी सूरत साथ में उतरी थी, किस्सों पे नहीं, एक साथ उतरी थी। अल्लाह से दुआ है ये जो हमने सुना, अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए उस पर बेहतर अमल करने की। और अच्छा खासा लंबा हो गया आज। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लंबा हो गया।